بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ انسان کی فطرت ایک عجوبہ ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پرانے لوگ گزرتے جاتے ہیں اور نئے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ نئے دور کے لوگ جدید سہولیات کو اپنا کر، جدید ملبوسات پہن کر اپنے آپ کو مہذب گردانتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ لباس بدل جانے سے انسان کی فطرت نہیں بدل جاتی۔ جو جرائم پہلے زمانے کے لوگ کرتے تھے وہ آج بھی ہوتے ہیں، بلکہ آج بے تحاشا ہو رہے ہیں۔ اگر پولیس کا ریکارڈ دیکھیں تو ایسی وارداتیں ملیں گی جن کو آپ ناقابل یقین تصور کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی انسان ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ روپے، پیسے، جائیداد کا لالچ، محبت، رقابت، حسد اور حسین اور من چاہی عورت کے حصول کی خواہش بعض انسانوں پر کسی آسیب کی طرح سوار ہو جاتی ہے، اور اس آسیب کے زیر اثر انسان ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے جو ہوش والے انسان کے لیے ناقابل یقین ہوتی ہیں۔ بلکہ جب ایسا کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اور شیطانی اثر سے آزاد ہوتا ہے تو خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے یہ واردات کی تھی۔ اس لیے انسانی نفسیات کے ماہرین نے قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن کہا ہے۔ واردات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں قیام پاکستان کے بعد کی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وطن عزیز کو معرض وجود میں آئے 11 سال گزر چکے تھے۔ ان دنوں ایوب خان نے پاکستان کی حکومت سنبھال لی تھی۔ ایوب خان نے پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کو ہٹا کر مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ یہ غالباً اکتوبر 1958 کی بات ہے۔ ان دنوں میں وسطی پنجاب کے ایک دیہاتی علاقے میں تعینات تھا۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ میرے تھانے کے علاقے میں ارد گرد کے 5 گاؤں آتے تھے۔ یہ زیادہ بڑے گاؤں نہیں تھے۔ ویسے بھی ان وقتوں میں آبادی کا یہ عالم نہیں تھا جو آج ہے۔ آج تو دور دراز دیہات میں بھی بجلی پہنچ چکی ہے اور سڑکوں کا جال بچھ گیا ہے۔ جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں بجلی تو بڑی بات ہے، وہاں پکی سڑک کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ پسماندہ علاقہ تھا۔ گرمیوں کے ابتدائی دن تھے اور گرمی نے ابھی زور نہیں پکڑا تھا، لیکن پھر بھی دوپہر کے وقت بہت گرمی لگتی تھی اور کمروں میں بیٹھ کر کام کرنا دشوار ہو جاتا تھا۔ میں تھانے کے صحن میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا کام کر رہا تھا۔ کمرے کی نسبت درخت کی گھنی چھاؤں میں کچھ ٹھنڈک تھی کیونکہ ہوا چل رہی تھی۔ میرے تھانے کے محرر نے درخت کے نیچے ہی ایک میز اور کرسی رکھوا دی تھی۔ میں محرر کو کچھ ضروری نوٹس لکھوا رہا تھا کہ ایک معزز صورت شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں اسے جانتا تھا۔ وہ قریبی گاؤں کا نمبردار تھا۔ بڑا ہی خوشامدی قسم کا انسان تھا۔ ذرا سی بات پر تھانے آ جاتا اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ میرا مخبر تھا۔ مجھے ایسے لوگ سخت ناپسند تھے، لیکن یہی لوگ میرے بڑے کام بھی آتے تھے۔ اس وجہ سے میں بظاہر اس شخص سے بڑے اتفاق سے ملا، اسے بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک حادثہ ہو گیا ہے اور وہ اس کی اطلاع مجھے دینے آیا ہے۔ اس نے جو بات مجھے سنائی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے گاؤں کا ایک عیسائی برکت مسیح اپنی گھر والی کو سائیکل کے پیچھے بٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ جب وہ چھوٹی نہر کے پل پر پہنچا تو اچانک مخالف سمت سے ایک بیل گاڑی بڑی تیز رفتاری سے آئی۔ بیل کسی وجہ سے بھڑکے ہوئے تھے اور گاڑی بان کے کنٹرول سے نکل کر منہ زور ہو چکے تھے۔ اس نہر کے پل کے دونوں طرف حفاظتی جنگلہ یا ریلنگ نہیں تھی جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ بیل گاڑی بے قابو ہو کر برکت مسیح پر چڑھ دوڑی۔ اس نے بچنے کی کوشش کی تو وہ دونوں میاں بیوی سائیکل سمیت نہر میں جا پڑے۔ بلندی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر پھر بھی جب تک برکت مسیح سنبھلتا اور بیوی کو سنبھالتا وہ کافی غوطے کھا چکی تھی۔ برکت مسیح جب تک بیوی کے پاس پہنچا وہ نیم مردہ ہو چکی تھی۔ برکت مسیح اسے پکڑ کر پانی سے باہر لا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا اور وہ مردہ بیوی کو لے کر باہر نکلا۔ یہ ایک سیدھا سادہ حادثہ تھا اور اس میں بظاہر پولیس کی دلچسپی والی کوئی بات نہ تھی۔ پھر بھی میں نے نمبردار سے کچھ سوال پوچھ کر
अपनी तसल्ली कर ली। इस वाक़े के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज करना ज़रूरी ना था। नंबरदार अपना फ़र्ज़ समझकर और मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए थाने इतला देने आ गया था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। उसे गए मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा कि वो दोबारा थाने में आ गया। उसके साथ 12-13 वर्ष उम्र का एक लड़का था। उसके चेहरे से दबा दबा जोश जाहिर हो रहा था, जैसे वो कोई अहम खबर लेकर आया है या कोई नया इंकशाफ करना चाहता है। मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और उससे पूछा कि ऐसी कौन सी नई बात हो गई है कि वो दोबारा आ गया है। मलिक साहब, उसने बड़ी जोश से कहा, मामला गड़बड़ है। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर कहा, कौन सा मामला गड़बड़ है? वो जी बरकत मसीह और उसकी घरवाली का मामला गड़बड़ है। उसने कहा, आप फ़ौरन चलें। साफ साफ बताओ बात क्या है? मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। क्या गड़बड़ गड़बड़ लगा रखी है? मुझे पूरी बात बताओ। पूरी बात आपको ये लड़का सुनाएगा मलिक साहब। उसने लड़के की तरफ इशारा किया और फिर उसे मेरे सामने खड़ा करते हुए कहा, ओए काका, जो कुछ तुमने देखा है वो मलिक साहब को बताओ। लड़का पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर मेरे मुश्फिकाना रवैये की वजह से बोलने लगा। उसने जो बात सुनाई उसे सुनकर मैं हैरान रह गया और सीधा सादा हादसा मुझे कत्ल का केस नज़र आने लगा। लड़के ने जो बात सुनाई वो मैं आपको सुना देता हूँ। हादसा या कत्ल? ये लड़का उसी नंबरदार के गांव का रहने वाला था जिस वक्त ये हादसा हुआ। ये लड़का नहर के पुल के करीब ही एक जामन के दरख्त पर चढ़ा जामन उतार रहा था। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, इसलिए इर्द गिर्द कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। उसने देखा एक तरफ से एक साइकिल सवार आ रहा था, उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी। वो साइकिल वाला जूं ही नहर के पुल पर चढ़ा, मुखालिफ सिमत से एक बैलगाड़ी नहर के पुल की तरफ आई। उसके बैल गाड़ी बांध के काबू में नहीं थे। बेकाबू बैलगाड़ी साइकिल पर चढ़ दौड़ी। साइकिल वाले ने घबराकर साइकिल मोड़ी तो साइकिल समेत नहर में जा गिरा। बैल रुके नहीं बल्कि वहशतज़दा अंदाज में भागते चले गए। लड़के ने दरख्त के ऊपर से देखा कि साइकिल के पीछे बैठी हुई औरत पानी में हाथ मार रही थी। लड़के ने बताया कि वो इन मियाँ बीवी की मदद के लिए इसलिए दरख्त से नहीं उतरा कि उसे मालूम था कि इस नहर में पानी इतना गहरा नहीं कि कोई डूब सके। फिर इस औरत का मर्द साथ था। उसने देखा कि मर्द पानी में तैरता हुआ औरत के पास पहुंचा, जो बुरी तरह घबरा गई थी और पानी में उल्टे सीधे हाथ मार रही थी, लेकिन मर्द की हरकतें मशकूक सी लग रही थीं। साफ पता चल रहा था कि इसे औरत को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर मर्द ने उसके हाथ पकड़ने की बजाय उसके सर पर हाथ रखा और नीचे को दबा दिया। औरत के फेफड़ों में खासा पानी चला गया होगा जब वो तड़प कर ऊपर उभरी। लड़के ने बताया कि वो हैरान और परेशान ये मंजर देख रहा था। औरत जब पानी से ऊपर उभरी तो मर्द ने उसका गला पकड़कर दबाना शुरू कर दिया और औरत तड़पने लगी। मर्द ने उसी तरह गला दबाए दबाए उसे फिर पानी में डुबो दिया और काफ़ी देर पानी के अंदर ही दबाए रखा। फिर उसने औरत को बाहर निकाला तो वो हाथ पैर ढीले छोड़ चुकी थी। मर्द ने इधर उधर देखा। नज़दीक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था। दूर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे और कुछ दरख्तों के साए में बैठे थे। उसने पुकार पुकार कर उनको बुलाना शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर में 7-8 आदमी वहां पहुंच गए। ये लड़का भी जामन के दरख्त से उतरकर उनके साथ जा खड़ा हुआ। इस वक्त तक मर्द औरत को किनारे पर ले आया था। करीब जाकर पता चला कि वो औरत मर चुकी है। उसका मर्द लोगों को बता रहा था कि किस तरह भड़के हुए बैलों के डर की वजह से वो मियाँ बीवी नहर में गिर पड़े थे और उसकी बीवी डूब कर मर गई। लोगों ने इससे अफसोस का इजहार किया। एक शख्स ने जो गोताखोरी जानता था उसकी साइकिल ढूंढकर नहर से बाहर निकाली। फिर एक आदमी अपना रेढ़ा ले आया और औरत की लाश उसमें रखकर गांव चले गए। लड़के ने बताया कि उसने किसी के साथ ये बात नहीं की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था। उसने अपनी आंखों से एक इंसान को दूसरे इंसान का कत्ल करते देखा था। वो इतना खौफजदा हुआ कि गांव जाने के बजाय इधर उधर फिरता रहा। जब नंबरदार थाने में हादसे की इतला मुझे देकर जा रहा था तो रास्ते में इस लड़के का और नंबरदार का आमना सामना हो गया। लड़के ने बेहतर यही समझा कि सारी बात नंबरदार को बता दे। नंबरदार ने ये बात सुनी
तो लड़के को लेकर उन्हीं कदमों लौट कर थाने आ गया। मैंने जब सारी बात सुनी तो मुझे वाकई मामला गड़बड़ नज़र आने लगा। मैंने नंबरदार से कुछ ज़रूरी बातें पूछी। मैंने उससे पूछा कि ये नहर इतनी गहरी है कि बंदा इसमें डूब जाए। नंबरदार ने बताया कि ये नहर आम नहरों से ज़रा छोटी है और इसकी गहराई भी इतनी ज़्यादा नहीं कि कोई डूब कर मर जाए। नंबरदार ने यह भी बताया कि पानी के पुल की बुलंदी भी इतनी नहीं कि गिरने की वजह से कोई चोट लगे। खतरनाक हुस्न। अब ये बात साफ थी कि बरकत मसीह ने अपनी बीवी को कत्ल किया है। वजह कत्ल मालूम करना ज़रूरी था। मैंने नंबरदार से पूछा कि क्या उसे मालूम है कि उनके घर लड़ाई झगड़ा रहता हो या कोई और वजह ऐसी हुई हो कि बरकत मसीह ने तंग आकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया हो। लड़ाई झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक जी, नंबरदार ने कहा। वो तो अपनी बीवी का दीवाना था। सारे गांव में मशहूर था कि वो बीवी के बगैर नहीं रह सकता। कुछ लोग तो उसे रन मुरीद भी कहते हैं। उसकी बीवी थी भी इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसका खामंद होता उसका गुलाम बनकर रहता। नंबरदार का ये जवाब सुनकर मुझे मायूसी हुई कि बरकत मसीह और उसकी बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और यह कि बरकत मसीह उसको दीवानगी की हद तक प्यार करता था। ये बातें सुनकर मुझे लड़के के बयान पर शक होने लगा था कि हो सकता है वो गलत समझा हो और बरकत मसीह वाकई अपनी घरवाली को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपने दिल में सोचा कि जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना बेहतर ना होगा। मैंने फैसला कर लिया कि पहले मरने वाली की लाश का मुआयना करूंगा, उसके बाद कोई कदम उठाऊंगा। मैंने 2 कांस्टेबल साथ लिए और नंबरदार को साथ लेकर बरकत मसीह के घर की तरफ चल पड़ा। मुझे नंबरदार ने बताया कि बरकत मसीह की घरवाली का नाम कामनी था। मैंने हिसाब लगाया कि कामनी को मरे कितना वक्त गुजर चुका है। मेरे हिसाब से कामनी को मरे अभी सिर्फ 2.5-3 घंटे हुए थे। मैं वक्त का हिसाब इसलिए लगा रहा था कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा वक्त गुजर जाए और कामनी को दफन कर दिया जाए। अगर कामनी को दफन कर दिया जाता तो फिर कब्र कुशाई के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता। मैं इससे बचना चाहता था। मेरे पास कोई वाज़ेह सबूत भी नहीं था कि कामनी को वाकई कत्ल किया गया है। बहरहाल इन्हीं सोचों में गुम कामनी के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता लगा कि अभी तक कामनी को दफन नहीं किया गया। कामनी के माँ बाप 2.5-3 मील दूर के एक गांव में रहते थे। वो आ चुके थे। अब कामनी की एक खाला का इंतज़ार था जो ज़रा दूर रहती थी। वहाँ रोना धोना मचा हुआ था। कामनी की माँ के बैन बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। लोग कहते हैं कि पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। पुलिस वाले भी गोश्त पोस्त के इंसान होते हैं और उनके सीने में भी हर इंसान की तरह गोश्त पोस्त का दिल धड़कता है। ये पुलिस वालों की मजबूरी होती है कि हर किस्म के हालात में इन्हें अपना फ़र्ज़ पूरा करना होता है। एक बावर्दी इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों को देखकर मिर्ग वाले घर एकदम सकूत सा छा गया और लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे। बरकत मसीह के घर बाहर भी लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। ज़रा सी देर में ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी कि बरकत मसीह के घर पुलिस आई है। लोग उसी तरह उमड़े चले आ रहे थे। नंबरदार मेरे साथ था। मैंने नंबरदार से कहा कि वो बरकत मसीह को मेरे पास लाए और इन इकट्ठे हो जाने वाले लोगों से कहे कि वो सब मुंतशिर हो जाएं। अभी मैं ये हिदायत दे ही रहा था कि एक जवान आदमी हमारे पास आ गया और मुझे सलाम किया। नंबरदार ने मुझे बताया कि यही बरकत मसीह है। मैंने बड़े गौर से पुलिस वालों की नज़रों से उसका जायज़ा लिया। वो गंदमी रंगत का सेहतमंद इंसान था और चेहरे के नकूश भी अच्छे ही थे। मैंने उसकी आंखों को देखा तो वो सुर्ख थीं और अब भी इनमें नमी नज़र आ रही थी। साफ पता चलता था कि वो रोता रहा है। मुझे उसकी ये हालत देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मर्द होकर औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो बरकत। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, मर्द बनो। उसने मेरी तरफ बड़ी बेचारगी और बेबसी से देखा और बोला कुछ नहीं। फिर वो दोनों हाथों से अपनी आंखें साफ करने लगा। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था और मेरी आमद से हैरान और परेशान नज़र आ रहा था। मैं कामनी को देखना चाहता हूँ, मैंने बरकत से कहा। उसे क्या हुआ है? वो नहर में डूब कर मर गई है हजूर, बरकत ने कहा। और फिर उसने मुझे वो तमाम हादसा सुना दिया जो मैं पहले सुना चुका हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं लाश देखूंगा
پھر اس حادثے کی تصدیق کروں گا تاکہ کل کلاں کوئی نئی بات نہ نکل آئے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ یہ محض قانونی کارروائی ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر اس کی کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ لاش والے کمرے سے تمام لوگوں کو باہر نکال دے تاکہ میں لاش کا معائنہ کر سکوں۔ وہ اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلا لیا۔ لاش ایک بان کی چارپائی پر رکھی تھی۔ چارپائی پر روئی کا گدا بچھا ہوا تھا اور ایک چادر سے سر سے لے کر پاؤں تک لاش کو ڈھانپا گیا تھا۔ میں نے برکت کو بھی کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگا اور باہر جانے میں پس و پیش کرنے لگا۔ میں نے اپنے کانسٹیبلوں کو اندر بلا لیا اور ان سے کہا کہ وہ اسے پکڑ کر کمرے سے باہر لے جائیں اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ کانسٹیبل برکت کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ برکت کے جانے کے بعد میں نے لاش کے اوپر پڑی چادر سر کی طرف سے پکڑی اور آہستگی سے کھینچ لی۔ جو ہی چادر اتری مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ اتنی ہی حسین تھی۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں یوں کھلی تھیں جیسے میری ہی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ مری ہوئی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا بدن گورا چٹا تھا، نین نقش میں بڑی جاذبیت تھی اور جسم کی ساخت انتہائی موزوں تھی۔ کامنی کو دیکھ کر مجھے نمبردار کے الفاظ یاد آنے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس کا خامند ہوتا اس کا غلام بن کر رہتا۔ وہ بلا شبہ خطرناک حد تک حسین عورت تھی۔ میں نے بڑی غور سے اس کا نظری معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر مجھے وہ چیز نظر آ گئی جو میں تلاش کر رہا تھا۔ اس کی گردن پر ہلکا سا سرخی مائل نشان تھا جو صرف غور سے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ گردن کے اس مقام پر دباؤ ڈالا گیا ہے یا کسی چیز سے ضرب لگی ہے۔ پھر میں نے کامنی کے سارے جسم کا جائزہ لیا مگر کوئی زخم یا چوٹ کا نشان نظر نہ آیا۔ میں نے دونوں کانسٹیبلوں کو اندر بلایا اور انہیں کہا کہ وہ برکت مسیح پر نظر رکھیں اور اسے ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ میں محض شک کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد ہی کوئی کارروائی کی جائے۔ میں نے نمبردار کو بلا کر اس سے کہا کہ لاش کو لے جانے کے لیے انتظام کرے۔ نمبردار نے فوراً تانگے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ضروری کارروائی کے بعد کامنی کی لاش کے ساتھ شہر کے سرکاری ہسپتال بھیج دیا جہاں پوسٹ مارٹم کا بندوبست تھا۔ میں نے شک کی بنیاد پر برکت مسیح کو حراست میں لے لیا اور اسے ساتھ لے کر تھانے چل پڑا۔ میں نے برکت کو ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ برکت خوفزدہ اور سہما ہوا ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ مقتولہ حاملہ تھی۔ تھانے پہنچ کر میں نے برکت کو حوالات میں بند کرا دیا اور خود اس واقعے پر غور کرنے لگا۔ یہاں میں پڑھنے والوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم کیوں ضروری ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ پوسٹ مارٹم وہ واحد طریقہ ہے جس سے موت کے اصل سبب کا تعین کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مرنے والا کس وقت اور کن حالات میں مرا تھا۔ پوسٹ مارٹم میں لاش کا پیٹ اور سینہ چیر کر معائنہ کیا جاتا ہے، کھوپڑی بھی کھول لی جاتی ہے اور اگر ڈاکٹر ضروری سمجھے تو اندرونی اعضاء کیمیائی تجزیے کے لیے نکال لیتا ہے۔ بعد میں لاش کا پیٹ اور کھوپڑی کو بند کر کے سی دیا جاتا ہے اور لاش وارثوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی عدالت میں خاص اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر استغاثہ یہ ثابت کرے کہ مقتول کو کلہاڑی کے وار کر کے مارا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ لکھا ہو کہ مقتول کے جسم پر چاقو کے زخم کے نشانات پائے گئے ہیں تو ملزم کو شک کا فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ ڈوب کر مرنے والے انسان کو آکسیجن نہیں ملتی اور اس کا سانس بند ہو جاتا ہے۔ پانی میں گرنے سے اچانک خوف سے بھی دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور دماغ کی وریدیں پھٹ جاتی ہیں۔ ڈوب کر مرنے والوں کی آنکھیں ادھ کھلی اور پتلیاں پھیلی ہوتی ہیں، زبان پھول جاتی ہے، ناک اور منہ سے جھاگ آنے لگ جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی جلد سکڑ جاتی ہے۔ پھیپھڑوں، معدے اور آنتوں میں پانی بھرنے کی وجہ سے یہ اعضاء پھول جاتے ہیں۔ پانی کے علاوہ ریت اور مٹی کے ذرات بھی ملتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں کہ مرنے والا ڈوب کر مرا ہے۔ میں نے کامنی کی لاش کا معائنہ کیا تھا تو مجھے ڈوب کر مر جانے والی تمام علامتیں واضح طور پر نظر آئی تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ ڈوب جانے کی وجہ سے مری ہے، لیکن اس لڑکے کا بیان اور گردن پر دباؤ کا نشان مجھے شک میں ڈال رہے تھے اور اسی شک کو بنیاد بنا کر میں نے کامنی کا پوسٹ مارٹم ضروری سمجھا تھا۔ اب مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا اور اس کے بعد ہی
میں نے کوئی कार्रवाई करनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले दिन शाम को मिलनी थी। मैं थाने के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। अगले दिन मैं थाने पहुंचा तो एक हेड कांस्टेबल ने मुझे बताया कि हवालात में बंद बरकत मसीह मेरे साथ बात करना चाहता है। मैं बरकत को बिल्कुल ही भूल गया था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद हेड कांस्टेबल बरकत को लेकर आ गया। मैंने बरकत की तरफ देखा, वो बड़े ख़राब हाल में था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेरे ख्याल में उसे हवालात में नींद नहीं आई होगी। मैंने उसे बैठने को कहा। वो बैठ तो गया, लेकिन उसके अंदाज में बड़ी बेचैनी थी। यूं लग रहा था जैसे कुर्सी में कीलें लगी हुई हैं जो उसे आराम से बैठने नहीं दे रहीं। मैंने उससे हाल चाल पूछा और कहा कि वो मेरे साथ क्या बात करना चाहता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? उसने रो देने वाले अंदाज में कहा। मेरा क्या कसूर है? मुझे एक शक है, मैंने कहा, और उसी शक की वजह से तुम यहाँ नज़र आ रहे हो। मेरा शक दूर हो जाएगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी घरवाली मर गई है सरकार, उसने हाथ जोड़कर कहा, और आपने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। हम गरीबों से क्या खता हो गई है हजूर। मैं अभी उसके साथ इस किस्म की बात नहीं करना चाहता था कि मुझे शक है कि उसने अपनी घरवाली को गला घोंट कर मार डाला है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अभी तक मुझे सिर्फ शक ही था और इस शक की बुनियाद मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुझे अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार था, इसलिए मैंने बरकत से कहा कि अभी इसे कुछ वक्त और हवालात में रहना होगा और मुनासिब वक्त पर मैं इसे बुला लूँगा। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो और कोई तकलीफ़ ना होने पाए। शाम के 4-5 बजे का वक्त होगा जब एक कांस्टेबल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ गया। मैंने बड़ी बेचैनी से रिपोर्ट देखी। उसमें डॉक्टर ने लिखा था कि कामनी की मौत की वजह डूबने और सांस रुक जाने की वजह से हुई है। उसने ये भी लिखा था कि मरने वाले के फेफड़ों, आंतों और मैदे में इतनी मिकदार में पानी नहीं पाया गया जितना आम तौर पर डूब जाने वाले लोगों के फेफड़ों, आंतों और मैदे में पाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर ने लिखा था कि मरने वाली के गले पर दबाव के निशान पाए गए हैं, जिससे जाहिर होता है कि मरने वाली के गले पर कोई वज़नी चीज़ लगी है या इसका गला दबाया गया है। एक और अहम बात जो डॉक्टर ने लिखी थी वो ये थी कि मरने वाली हामला थी और ये हमल 3रे माह में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि बरकत मसीह ने अपनी घरवाली को नहर में गिरने के बाद गला घोंटकर मार डाला था। अब मुझे उस लड़के के बयान पर यकीन हो गया था कि उसने बिल्कुल ठीक देखा था। मैंने अब बरकत मसीह को तफ्तीश की चक्की में डालने का फैसला कर लिया। रन मुरीद। कामनी की लाश पोस्टमार्टम के बाद आ गई थी। मैंने गांव में इतला भिजवाई तो कामनी का बाप और उसके 2 भाई लाश वसूल करने के लिए आ गए। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद लाश उनके हवाले कर दी। कामनी के बाप ने अपने दामाद बरकत के मुतालिक पूछा कि उसे क्यों थाने में रखा गया है, तो मैंने उसे बताया कि मुझे शक है कि कामनी को इसके खामन ने कत्ल किया है। यह सुनकर वो बड़ा हैरान हुआ। क्या आपकी बेटी अपने घर में खुश थी? मैंने उससे पूछा। कभी कोई शिकायत नहीं आई सरकार, कामनी के बाप ने कहा। कामनी हमेशा बरकत की तारीफ़ करती थी और वो अपने खामन के साथ खुश थी। इनके दरमियान कभी कोई झगड़ा हुआ होगा? मैंने उससे पूछा। याद करके बताओ, कभी कामनी ने घर आकर बताया हो? नहीं सरकार, कामनी के बाप ने 2 टोक लहजे में कहा। शादी को 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैंने कामनी के बाप से बहुत सवाल किए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछा, मगर मुझे उससे कुछ भी हासिल ना हुआ। मैंने कामनी के भाइयों से भी कुरेद कर पूछा, मगर वो भी मेरे काम की कोई बात ना बता सके। कामनी के भाइयों ने कहा, चूँकि बरकत हवालात में बंद है, इसलिए वो अपनी बहन की लाश अपने गांव ले जाना चाहते हैं और वहीं उसकी आखिरी रसूम पूरी करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि मेरी तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, वो कामनी की लाश जहां ले जाना चाहें ले जाएं। कामनी का बाप और भाई लाश लेकर चले गए तो मैंने बरकत को बुला लिया। मैंने बरकत को बताया कि कामनी की लाश पोस्टमार्टम के बाद आ गई है और उसके साले और ससुर लाश को यहाँ से ले गए हैं। मेरी बात सुनकर उसकी हालत ख़राब हो गई और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे भी जाने की इजाज़त दे दें माई बाप, उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मैं अपनी कामनी को अपने हाथों से दफन करना चाहता हूँ।
इन्हीं हाथों से, मैंने कहा, जिनसे इसका गला दबाया था। वो यूं उछला जैसे मैंने उसके पैरों में बम फेंक दिया हो। उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा खुल गई थीं और रंग ऐसे पीला पड़ गया जैसे जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो अच्छा भला सेहतमंद आदमी था, लेकिन उस वक्त सर्दी लगे मरीज़ की तरह काँप रहा था। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल ना सका, सिर्फ मुंह खोल कर रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आखिर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर कहा, भला मैं कामनी को क्यों कत्ल करता? कामनी में तो मेरी जान थी, और अपनी जान को कोई कत्ल करता है? वजह भी तुम ही बताओगे, मैंने कहा। नहीं बताओगे तो मैं खुद मालूम कर लूँगा, आप जिससे मर्जी पूछ लें जी। उसने कहा, हम दोनों का प्यार सारे गांव में मशहूर है। और फिर वो कुछ सोचने लगा और फिर कहा, और फिर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं अपनी घरवाली को और होने वाले बच्चे को कैसे कत्ल कर सकता हूँ हुजूर? अब बरकत बड़े एतमाद से बोल रहा था, और उस पर जो घबराहट तारी हो गई थी वो ख़त्म हो गई थी। उसने जो कुछ कहा था वो वज़न रखता था, लेकिन मेरे जहन में ऐनी शायद लड़के का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इसलिए मैं उसकी किसी दलील से मुतासर नहीं हो सकता था। कामनी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मकतूला का गला घोंटा गया है। मेरी नज़रें उसके चेहरे और आंखों पर जमी हुई थीं, और मैं अपनी बात के खफीफ से रद्द अमल को भी भांप लेने के लिए तैयार था। मैंने देखा कि बरकत के चेहरे पर परेशानी की एक लहर सी आई और गायब हो गई, यूं जैसे घुप अंधेरे में कोई जुगनू चमक कर बुझ जाता है। वो मेरी नज़रों की चुभन से बचने के लिए आंखें तेज़ी से झपकने लगा। उसकी गर्दन पर घोंटने का निशान मौजूद है, मैंने कहा। साफ पता चलता है कि उसका गला घोंटा गया है। जब हम नहर में गिरे तो साइकिल पर बैठे हुए थे, उसने कहा। साइकिल भी हमारे साथ ही गिरी थी। हो सकता है साइकिल का कोई हिस्सा उसकी गर्दन पर लग गया हो और उसका निशान भी बन गया हो। उसने दलील अच्छी दी थी, लेकिन मेरे पास अभी तर्क का पत्ता मौजूद था जिससे बाजी पलट सकती थी। मैं बरकत को जितना सीधा सादा समझ रहा था, वो उसके बरअक्स तेज़ और चलता पुर्जा साबित हो रहा था। मैं समझ गया कि ये आसानी से नहीं मानेगा। मैं इसके साथ कोई रियायत नहीं करना चाहता था। अपने तजर्बे की वजह से मैंने देख लिया था कि वो झूठ बोल रहा है और बात करते करते नज़रें चुरा लेता है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इकबाली बयान दे दो, मैंने उससे कहा। अगर खुद बयान दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रियायत कर दूंगा। अगर तुम इकबाली बयान नहीं देना चाहते तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास मौका का गवाह मौजूद है जिसने तुम्हें कामनी का गला घोंटते और उसे पानी में डुबोते देखा है। मैंने उसे सारा वाक़या तफसील से सुनाया कि किस तरह एक लड़के ने इत्तेफाकन उसे कत्ल करते हुए देख लिया था। फिर मैंने उससे पूछा, अब बोलो क्या कहते हो? अब तो उसकी हालत ख़राब हो गई। वो हैरान और परेशान सा मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं उसे ज़्यादा सोचने और संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। जल्दी बोलो, मैंने मेज़ पर हाथ मार कर कहा। तुमने कत्ल किया है, बोलो हाँ या ना। नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया, मैंने कत्ल नहीं किया। लोग मुझे रन मुरीद कहते हैं और ये बात सच है। मैं इतनी हसीन बीवी को क्यों कत्ल करता? इसी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, यानी वजह कत्ल। मैंने उससे बहुत से सवाल किए और घुमा फिरा कर उगलवाने की कोशिश की, लेकिन वो उसी बात पर अड़ा रहा कि ये मान भी लिया जाए कि इसने अपनी घरवाली को कत्ल किया है, तो सवाल पैदा होता है कि इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी उसे कत्ल करने की। वो शायद मेरी ये कमज़ोरी समझ गया था और इसी बात पर अड़ गया था। मैंने उसको हवालात में बंद कर दिया। अब मैंने अपने पुलिस के ख़ास ज़राए इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया था। ये ख़ास ज़राए थे मुखबिर। ये मुखबिर पुलिस के बाकायदा मुलाजिम नहीं होते, बल्कि अपने अपने मफाद की खातिर और थोड़े बहुत पैसों के लालच में इलाका थानेदार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुखबरी का काम करते हैं। इनमें छोटे मोटे जराइम करने वाले होते हैं जो थानेदार से रियायत हासिल करते हैं। कभी कभार थानेदार उनके हाथ में कुछ पैसे भी थमा देते हैं। मुखबरों की दूसरी किस्म मुअज़्ज़िज़ किस्म के लोगों की होती है, जो महज इलाका थानेदार की खुशनुदी हासिल करने के लिए और लोगों पर रोब दाब रखने के लिए मुखबरी करते हैं और इलाका थानेदार को खुश रखते हैं।
میں نے نمبردار سمیت اپنے تمام مخبروں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ برکت مسیحی اور مقتولہ کامنی کے بارے میں اندر کی تمام باتیں معلوم کر کے لائیں۔ دیہات میں کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ شام تک مخبروں نے مجھے خبریں پہنچانی شروع کر دی تھیں، لیکن ان میں میرے کام کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ دن بھی یوں ہی گزر گیا اور مجھے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ میں نے عینی شاہد لڑکے کو تھانے بلا کر ایک بار پھر اس سے سارا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ اس نے سارا واقعہ مجھے دوبارہ سنا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے یقین ہے کہ برکت مسیح اپنی گھر والی کو پانی میں ڈبو رہا تھا اور اس کا گلا دبا رہا تھا۔ وہ درخت بالکل نہر کے کنارے پر ہے، لڑکے نے کہا۔ وہاں سے بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ آپ خود سوچیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ نہر اتنی گہری ہے کہ کوئی اس میں ڈوب جائے؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں جی، اس لڑکے نے جواب دیا۔ اس نہر کو ہم چھوٹی نہر کہتے ہیں اور یہ اتنی گہری نہیں ہے کہ کوئی اس میں ڈوب جائے۔ اس میں تو چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی نہاتے رہتے ہیں۔ آج تک اس نہر میں کوئی ڈوبا نہیں۔